Happy New Year. We celebrate New Year. The reason is the feast of the naming of Jesus Christ. We celebrate New Year because it's New Year. I'm not going to talk about the naming of feast of the naming of Jesus Christ के आज यसु मसीह का नाम रखा गया था और the circumcision of Jesus Christ या यसु मसीह के खतने के बारे में. I'm going to talk about something which is little bit philosophical, profoundly theological, and it has a little bit cultural element into it. What God did in the beginning, He created heavens and the earth. खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया. When God created heaven and the earth and heaven should have been wonderful. But what Bible tells us, it was all void, shapeless and dark and dim. खुदा ने रोशनी पैदा की. And with the creation of light, God created time. And that is going to be the theme of my sermon, time. One of the most important thing in our life, in our societies, and in the whole universe. जब खुदा ने वक्त पैदा किया, बनाया, उसको तख्लीक किया, तो तब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ. If the time was not created, we would be living in a timeless realm. When we are living in a timeless realm, it's a kind of eternity. लेकिन खुदा ने जब कहा, let there be light, it was not only the light. Then God divided light from the darkness, and to the darkness He called night. Those who knows Urdu, they would understand, or you may link up this kind of phonetic connections, errors, and Hebrew में errors कहते हैं. शमायम, समा, आसमान. खुदा ने आसमानों को पैदा किया और खुदा ने ज़मीन को पैदा किया, और ज़मीन वीरान और सुनसान थी, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई. खुदा के कहने से रोशनी हो गई. And the question is, who created heavens and the earth? This may be a question for scientists, this may be a question for agnostics, this may be a question for those who don't believe in God. But what Bible tells us simply through the Genesis story of creation, it's not about how God created heavens, but who created heavens and the earth. And in the first verse of the Bible, it is presumed the one who is going through these verses, through the book of Genesis, understand and believes that God created heavens and the earth. Then God created time. God created light. And then with the division of light and darkness, light from the darkness, the time was created. क्या हुआ? जब खुदा ने नूर बनाया, रोशनी बनाई, फिर रोशनी को तारीकी से God separated darkness from the light. और खुदा ने जो रोशनी थी उसे दिन कहा, और जो अंधेरा था, तारीकी थी, उसे क्या कहा? अब जब आप इन आयात को पढ़ें तो इसके पीछे कुछ साइंटिफिक ये बातें नहीं हो रही सारी. ये खुदा हमें बताना चाहता है कि ये कायनात मैंने खलक की है. खुदा ने कायनात किस तरीके से खलक की, ये इंटेलेक्चुअली वी कैन एक्सप्लोर. साइंटिस्ट, फिजिस्ट्स वो अपने तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन पैदाइश की किताब में खुदा का इंसानों को बताने का तरीक़ाकार ये है, बताने का मकसद ये है कि ये मैंने खलक किया. गॉड्स पर्पस, God's promise, God's presence, and God's provision. These big messages we see in the book of Genesis. Now, question is this, कि we are living in a physical world. एक मादी दुनिया में हम रह रहे हैं, जहां पर ये चीजें हैं जो जगह घेरती हैं, जहां पर ये चीजें हैं जो पुरानी हो जाती हैं. इंसान बूढ़े हो जाते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं, दरख्त आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाते हैं, बड़ी बड़ी ताकतवर बिल्डिंग्स मस्मार हो जाती हैं,
सब कुछ खत्म हो जाता है। वाई इट हैपन्स? बिकॉज ऑफ टाइम। वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम एलोकेटेड टू अस। गॉड क्रिएटेड टाइम। द क्वेश्चन इज, व्हेन गॉड क्रिएटेड टाइम, वॉज ही इन टाइम और आउट ऑफ टाइम? एक बड़ी मशहूर फिजिक्स की थ्योरी है कॉजेशन, विच मीन कॉज और उसका इफेक्ट, कॉज एंड इफेक्ट। अब कायनात जब तख्लीक हुई, रोशनी बनी, तो समवन हु इज आउट ऑफ द यूनिवर्स क्रिएटेड यूनिवर्स। खुदा जो टाइम के अंदर नहीं है बल्कि टाइम से बाहर है, उसने टाइम को खलक किया। अगर हम इसको पढ़ें तो ऐसे लगता है कि खुदा ने वक्त पैदा करके हमें तो वक्त की कैद में डाल दिया, हमें तो ज़मा और मकान की कैद में डाल दिया। हम तो बूढ़े हुए फिर मर गए, बच्चे थे जवान हुए बूढ़े हुए मर गए। दरख्त छोटे पौधे होते हैं, बूढ़े होते हैं, 200-300 साल बाद, 50 साल बाद, 40 साल बाद वो खत्म हो जाते हैं। हर चीज को फना है बिकॉज ऑफ द टाइम। एवरीथिंग हैज बीन एलोकेटेड अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम। लेकिन खुदा ने जो वक्त से बाहर है, अपने तजस्सुम के जरिए से वक्त, टाइम, जो चैलेंजेस हमारे सामने रखता है, उसको एक्सपीरियंस किया। द वर्ड बिकेम फ्लैश। यीशु मसीह की शख्सियत में खुदा ने वक्त की कैद का तजुर्बा भी किया, और ये मिस्ट्री हम कलाम की मदद के जरिए से खोल सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। गॉड क्रिएटेड टाइम। गॉड थ्रू द पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट एक्सपीरियंस्ड टाइम। खुदा ने खलक किया वक्त को, फिर यीशु मसीह की शख्सियत के ज़रिए से उसका तजुर्बा किया, और फिर हमें हदायत की, नसीहत की, एडवाइस की टू यूज़ आवर टाइम वाइजली। ये तीन चीज़ें आज नए साल के मौके पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। गॉड क्रिएटेड टाइम, गॉड एक्सपीरियंस्ड टाइम, एंड गॉड एडवाइस्ड अस थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड टू यूज़ आवर लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम जो हमें एलोकेट की गई है, उसको वाइजली इस्तेमाल करें। आपने वाइज की किताब में से बड़ी मशहूर आयात सुनी होंगी। किंग सोलोमन, हु वाज प्रोबेबली वन ऑफ द वाइजेस्ट किंग इन ह्यूमन हिस्ट्री। एक दफ़ा किंग सोलोमन को किसी ने सवाल किया, पूछा कि किंग सोलोमन, अगर खुदा तुम्हें दोबारा कहे कि ज़मीन में जाओ और पैदा हो, तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? तो उसने कहा कि ज़मीन में बहुत दुख हैं, इट्स फुल ऑफ मिजरीज, आई वुड नॉट लाइक टू कम बैक एंड बॉर्न अगेन। द मैन हु वॉज आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम किंग सोलोमन, ही सेड, इफ गॉड इंसिस्ट यू go back and born again, King Solomon, what will be your answer? King Solomon said, I won't like to come back and born again. It's so miserable in this world. If God insists you, King Solomon, what will you answer? King Solomon, who was probably the wisest king in human history, he said, I would like to come back in this world on my own conditions. What are your conditions, King Solomon? He said, I would like to be born as an old man and would like to die as a child. Life other way around. क्यों? जब मेरे पास जिंदगी थी, मुझे गुजारनी नहीं आती थी, और अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब रह पीछे थोड़ी गई है, तो अब गुजारनी आई है। It always happen. The brevity of life challenges us that we need to listen the word of God, listen to your parents and elders, to your vicars and ministers, and all those who have gone through the challenges of life. It's not easy. Probably one of the most complex thing God has given to us life, and then खुदा ने इस लाइफ को एक शिकंजे के अंदर जकड़ दिया है, और उस शिकंजे का नाम है टाइम। If you can figure it out, you will leave a wonderful legacy behind. People will remember you for centuries and centuries, for years and years. जिन लोगों को हम याद रखते हैं, ये नहीं कि उन्होंने लंबी उम्र गुजारी थी, उन्होंने अच्छी उम्र गुजारी थी। It doesn't matter how long you live, but it matters how you live. खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि the brevity of life is quite a challenging thing to sort out. We can only sort it out
through the wisdom that God gives us, wisdom that comes to us through His Word, through His people, through our own experiences. हम अपने तजुर्बात से सीखते हैं और उन तजुर्बात को इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ते हैं। एक टाइम है जिसको मैंने बिग पिक्चर में बताने की कोशिश की, जिसका इतलाक हर चीज़ पर होता है। वो मादी चीज़ है, वो जानदार चीज़ है, वो गैरदार जान चीज़ है, वो पत्थरों पे भी होता है, वो कीड़ों मकोड़ों पे भी होता है, वो इंसानों पे भी होता है। एक टाइम है जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ मदारिज होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ। व्हाट किंग सोलोमन सेज इन द बुक ऑफ एक्लीसियास्टिस चैप्टर 3, वाइस की किताब उसके 3 बाब की मैं पहली आयत से पढ़ने लगा हूँ। फॉर एवरीथिंग देयर इज़ अ सीजन and a time for every matter under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to pluck up what is planted, a time to kill and a time to heal, a time to break down and a time to build up, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to throw away stones and a time to gather stones again, a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to seek and a time to lose, and so on and so on. टाइम हमारी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मौक़े लेकर आता है। समटाइम वी आर हैप्पी, समटाइम वी आरंट, समटाइम वी आर हेल्दी, समटाइम वी आर नॉट फीलिंग वेल, समटाइम वी हैव लॉट ऑफ मनी एंड समटाइम वी वांट है। कोई भी जो हम रहना चाहते हैं, ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, हम तो चाहेंगे कि हम खुश रहें और कोई दुख ना हो। लेकिन किंग सोलोमन कहता है, आई हैव मेट द पुअर एंड द रिच, आई हैव मेट द किंग्स एंड ऑर्डिनरी पीपल, I have met the wise and the sane, but I have found each and every person on this planet with problems. जिसको कहते हैं ना Mr. No Problem, there is no one in this world who is Mr. No Problem or Miss No Problem. Everyone has a problem. Life एक contract है. It's not pay as you go. Pay as you go समझते हैं ना? जितना आपने डाल लिया बैलेंस, उतना आपने इस्तेमाल कर लिया। लाइफ इज नॉट अ पे एज यू गो, लाइफ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। आप में से जिन लोगों की शादी हुई है और जिन लोगों की अभी शादी होने वाली है, आप सब के लिए व्हेन पीपल आर मैरिड इन द चर्च वॉज होते हैं, और उन वॉज के अंदर, उन अहदो पैमा के अंदर, अ कपल say to each other in good times and in bad times. Good times and bad times. This is just part of life. और ये खुदा का कलाम हमें बताता है। खुदा ने इंसान को बनाने से पहले वक्त को तख्लीक किया, टाइम पैदा किया, और इस टाइम की लिमिट के अंदर एक इंटेलेक्चुअल बीइंग खलक की, उसे अपनी सूरत पर, अपनी शबी पर बनाया, और उसे शबी पर बनाकर अकल दानिश देकर इस दुनिया में एक बच्चा बनाकर छोड़ दिया। अब ये हमारा टेस्ट है कि हम कैसे ये जिंदगी गुजारते हैं। अगेन आई वुड लाइक टू फोर्स ऑन दैट, इट डजंट मैटर हाउ लॉन्ग वी लिव। जब खुदा इंसान बना, हाउ ओल्ड जीसस वाज when he started his ministry? You have any idea? Hanji? 30 years. How old he was when he finished his ministry? 33. Some people say 33 and a half. So basically, mission impossible, or the biggest mission in human history ever, was achieved, launched and concluded only in 3 years. When God became human, he was aware of the brevity and limit of time allocated to himself. मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में इतना कामयाब मिशन कोई 3 साल में कंप्लीट कर सकता है। I am much older than Jesus was. मैं तो 50 साल से भी बड़ा हो गया हूँ। Whenever I think, oh, in 20 years or 15 years time I am going to retire, मुझे बड़ी वरी होती है, क्योंकि मैंने तो ये भी करना है, मैंने ये भी करना है, मैंने ये भी करना है। जो दुनिया में ज़्यादा सक्सेसफुल लोग थे, वो उन्होंने कोई ये नहीं कि लंबी उम्र पाई थी इस वजह से सक्सेसफुल थे, ये जस्ट टाइम मैनेजमेंट उन्होंने की थी।
आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू अनदर लेक्चर ऑन टाइम मैनेजमेंट, लेकिन बाइबल मुकद्दस हमें बार बार बताती है कि वक्त को गनीमत जानो। बाइबल मुकद्दस हमें बार बार बताती है कि अपने दिन गिनना सीखो। ज़बूर 90 उसकी 15वीं आयत में अपने दिन गिनना सीखो ताकि तुम दाना दिन हासिल करो। दानाई का और दिनों के गिनने का ये नहीं कि आपने बैठे गिनते रहना, मेरी 15वीं सालगिरह हो गई और मेरी 20वीं सालगिरह हो गई और अगले साल मेरी 21वीं सालगिरह हो जाएगी। दिस इज नॉट अबाउट विजडम, व्हाट आई हैव अचीव्ड। मैंने कितना खुदा की खुशनुदी हासिल की है, कितना मैं खुदा के खौफ में रहता हूँ, कितने इंसान मुझसे मोहब्बत करते हैं और कितना मैं इंसानों को मोहब्बत करता हूँ। और आखिर में मैं आपके सामने यही नुक्ता दोबारा रखना चाहूँगा कि गॉड क्रिएटेड टाइम। खुदा ने टाइम को एक्सपीरियंस भी किया और खुदा ने अपने कलाम के ज़रिए से हमें बताया और हमें समझाया कि हमने किस तरीके से वक्त को अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से और दानिश और हिकमत से गुजारना है, ताकि जब हमारे जाने का टाइम हो तो फिर हमें ये ना हो कि थोड़ा और वक्त मिल जाए, बल्कि हम खुशी से ये कहें कि हमारी रुखसती का वक्त है। आप कहेंगे कि ये नए साल पर ये किधर को कलाम जा रहा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नए साल पर हमें यही समझना चाहिए कि वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम एलोकेटेड टू अस। It doesn't matter you believe in God or you don't believe in God. Even those who don't believe in God, they understand the importance of brevity of life and a limited amount of time allocated to each and every one. Even जो खुदा को नहीं मानते, क्या वो ये समझते हैं कि हमने क़यामत तक मरना ही नहीं? 70 वरे थी, 80 वरे थी, आखिर में फिर भी ये सबके साथ होना है। वो अमीर है, वो गरीब है। And as Dr. Billy Graham once said, so profound, so deep theological statement he gave, जो मौत है, डेथ है, वो डेमोक्रेटिक है। ये सब पे आती है, गरीब पे भी, अमीर पे भी। लेकिन नया साल हमें ये बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी में नयापन हासिल करें। मैं आपको ये यकीन से बताना चाहता हूँ कि जब आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा कर लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी आसान, मौसर और पुरअसर बन जाएगी। इतने सुकून में रहेंगे जिसका आप कभी शायद इजहार भी ना कर सकें पूरे तौर पर। एक गहरा सुकून हमारी ज़िंदगी में आएगा। खुदावंद आपको नए साल के ज़रिए से बरकत दे। खुदावंद हमें तौफीक अता करे कि हमें जो भी वक्त खुदा ने अता किया है उसको वाइजली इस्तेमाल करें, इफ़ेक्टिवली इस्तेमाल करें और एक अच्छी लेगेसी अपनी इस दुनिया में छोड़ कर जाएं। आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो।